السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے اپنی مرنے کے بعد کی زندگی، جسے ما بعد الموت کہتے ہیں، اس کی فکر کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کو سنوارنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کرے، یعنی موت کی تیاری کرے۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی ہم جو بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، وہ کیسے بنے گی؟ فرمایا کہ اعمال کے ذریعے سے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ان تمام اعمال سے آخرت کی زندگی بنتی ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بنانا ضروری ہے، ورنہ اگر ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہیں کریں گے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کریں گے، تو سوائے پچھتاوا کے اور افسوس کے کچھ نہ ہاتھ لگے گا، کیونکہ مرنے کے بعد وہاں کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں کی زندگی میں صرف اعمال کام دیں گے، نیکیاں کام دیں گے۔ وہاں کی دولت صرف اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں اسی دنیا میں موت سے پہلے یہاں خوب نیکیاں کمانا چاہیے۔ جیسے آخرت کو بنانے کے لیے نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات یہ اعمال ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ویسے ہی روزہ بھی ایک آخرت کو بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اعمال میں کچھ بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں 10 گنا دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اور اعمال کے وزن سے، اعمال کی کوالٹی سے اور نیت کے خلوص سے ہمارے ثواب کو، ہمارے نیکی کے بدلے کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف میرے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کا بدلہ، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیکیوں کی بڑھوتری میں مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے جو رحمان کے دائیں ہتھیلی میں پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں پہنچتا ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر احد کے پہاڑ کو توڑ کر کھجور کے اتنے ٹکڑے بنائیں گے تو کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے، جن کا شمار کرنا مشکل ہوگا، ان کی گنتی کرنا محال ہوگا، یعنی گنتی کرنا ناممکن ہو جائے گا، اتنے ٹکڑے بن جائیں گے، یعنی اتنا ثواب ہمیں ملے گا خلوص کے، دل کے خلوص کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ جب فرشتوں کے ہاتھوں سے دیا گیا ثواب اتنا ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ جب دیں گے تو وہ کتنا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا کوئی شمار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تمام مالکوں کے مالک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے بڑے اور اتنے بھرپور ہیں کہ اگر ساری کائنات مل کر، انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند، جانور، کائنات کی ہر چیز مل کر اگر اللہ کے خزانے کو لوٹنا چاہیں تو بھی اللہ کے خزانے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ صرف میرے وجہ سے، میرے ڈر سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے،
और बंदा मेरी वजह से रुका रहता है, इसलिए इसका बदला, इसका सवाब मैं ही दूंगा। तो मालूम हुआ कि रोज़ा जो है अल्लाह ताला के नज़दीक कितना बड़ा कीमती है। और एक दूसरी हदीस में आता है कि रोज़े की वजह से रोज़ादार के मुंह से जो बदबू आती है, बू आती है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। बाद रिवायत में आया है कि कल क़यामत के दिन लोग कब्रों से उठेंगे तो कुछ लोगों के मुंह से खुशबू महकेगी, मुश्क की खुशबू आएगी। तो लोग पूछेंगे कि इनके मुंह से खुशबू कैसी आ रही है? तो उनसे कहा जाएगा कि ये लोग मरने से पहले दुनिया के अंदर रोज़ा रखा करते थे, रोज़े के पाबंद थे। तो कितनी बड़ी दौलत है, इसलिए हमें रोज़ा जो है किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, रोज़े के अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ होंगी तो उसे बर्दाश्त करें, क़ुरबानी करें, लेकिन जो है रोज़ा न छोड़े। और रोज़े को दुरुस्त करने के लिए नीयत का दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। फरमाया कि रोज़े के अंदर जब तक नीयत ना होगी तो वो रोज़ा ना होगा। और नीयत के लिए क्या ज़रूरी है कि दिल का इरादा, दिल में अगर रोज़े का इरादा है तो वह नीयत हो गई। इसके लिए ज़ुबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर अरबी में दुआ आती हो, जैसा कि बिसौ मिगादिन मिन शहर रमज़ान, अगर ये दुआ आती हो तो पढ़ना बेहतर है। नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, रोज़ा हो जाएगा, दिल के इरादे से रोज़ा हो जाएगा। और फरमाया कि रोज़ा 5 किस्म का है, उसमें से 4 किस्म के रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं और 1 किस्म के रोज़े नफ़ल हैं। 5 किस्म के रोज़े जो फ़र्ज़ हैं वो ये हैं कि एक तो रमज़ान के महीने में रोज़े, पूरे महीने के रोज़े, ये किसी भी हालत में हमें माफ़ नहीं है। एक जगह नमाज माफ़ है, औरतों को जब माहवारी आती है, जितने दिन माहवारी के होंगे उतने दिन की पूरी नमाज़ें माफ़ हैं, उनकी कज़ा भी उनके ऊपर ज़रूरी नहीं है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा फरीज़ा है जो औरतों को माहवारी के वक्त में रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन माफ़ नहीं है, बल्कि जब माहवारी से पाक होंगे और रमज़ान गुज़र जाएगा तो उसकी कज़ा उनके ऊपर फ़र्ज़ है। तो मालूम हुआ कि रोज़ा जो है कितना बड़ा अमल है। तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। उसके बाद फरमाया अगर कज़ा रोज़े हमारे ज़िम्मे हो, हमारे ऊपर कज़ा बाकी है रोज़ों की, तो वो भी रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। और तीसरा नज़र के रोज़े, जो मन्नत मान लेते हैं कि मैं अगर फ़ला काम हो जाएगा तो मैं 2 रोज़े रखूँगा, फ़ला काम हो जाएगा तो मैं 10 रोज़े रखूँगा, ऐसे जो मन्नत के रोज़े मांग लेते हैं, मन्नत करते हैं, तो वो रोज़े भी मन्नत पूरी हो जाने के बाद अदा करना फ़र्ज़ है। अगर नहीं अदा करेंगे तो गुनहगार होंगे। इसी तरह क़ज़ा रोज़े भी अदा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, और रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े भी अदा नहीं करेंगे तो ये भी गुनहगार होंगे। फिर आगे फरमाया कि कफ़ारा के रोज़े, जब हमारे ऊपर कफ़ारा लागू हो जाता है तो वो रोज़े भी फ़र्ज़ हो जाते हैं, उसको भी अगर अदा नहीं करेंगे तो हम गुनहगार होंगे। इसलिए जब इन रोज़ों में से कोई भी रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाए, लागू हो जाए, तो उसे किसी हाल में भी अदा करना ज़रूरी है। अब बाकी रहा नफ़ल रोज़े, जैसा कि आशूरा का रोज़ा, 2 रोज़े रखने का हुक्म है कि 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं को, मुहर्रम की 9वीं तारीख़ और 10वीं तारीख़ को, या 10वीं और 11वीं तारीख़ को 2 रोज़े करना नफ़ल है। इसी तरह अय्याम बैज़ में जो रोज़े रखा करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि हर महीने उर्दू तारीख़ के हिसाब से 13, 14, 15 तारीख़ को रोज़ा रखा करते थे। और इसी सुन्नत को अदा करने के लिए आज भी बुज़ुर्गान दीन ये अय्याम बैज़ के रोज़े रखा करते हैं। इसी तरह शाबान के महीने में 3 रोज़े हैं, 13, 14, 15 तारीख़ को, वो भी नफिल है। यानी इन फ़र्ज़ के अलावा जितने भी रोज़े हैं वो नफिल है, और नफिल रोज़ों को रखेंगे तो सवाब है, न रखेंगे तो कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो मालूम हुआ कि रोज़ों की 5 किस्में हैं, जिसमें 4 फ़र्ज़ हैं और बाकी सब नफल है। अब रहा नीयत जो है रोज़ों की, बाज़ लोग क्या करते हैं कि हमारे ऊपर अगर कज़ा रोज़े बाकी हैं,
या कफ़ारे के रोज़े हम पर लागू हैं या नज़र के रोज़े यानी मन्नत के रोज़े बाकी हैं। तो अगर कोई ये समझ ले कि भाई अब रमज़ान शुरू हो रहा है या रमज़ान शुरू हो गया है, तो इसी महीने में हम अक्सर जो है रमज़ान के रोज़े रखते हैं, तो उन्हीं रोज़ों में इनकी भी नीयत कर ली जाए। कज़ा बाकी है तो कज़ा की भी नीयत कर ली जाए, या कफ़ारे के बाकी हैं तो कफ़ारे की नीयत कर ली जाए, या मन्नत के रोज़े हैं तो मन्नत के रोज़ों की भी नीयत कर ली जाए, वो भी अदा हो जाएंगे, ये भी अदा हो जाएंगे। तो ऐसा समझना गलत है, क्योंकि रमज़ान के अंदर किसी भी रोज़े की नीयत कर ले तो वो रोज़े अदा नहीं होंगे, बल्कि रमज़ान का ही रोज़ा अदा होगा, बाकी रोज़े उनके ऊपर बाकी रहेंगे। रमज़ान ख़त्म होने के बाद में उन रोज़ों को अदा करना ज़रूरी है। तो इससे मालूम हुआ कि हमारी नीयत भी दुरुस्त हो और रोज़े की किस्म और उसकी क्या फ़र्ज़ियत है, उसका क्या दर्जा है, ये भी हमारे इल्म में हो, ताकि हमें रोज़ों को उस दर्जे से पूरा करने में आसानी हो। भाई ये बातें जो हैं दीनी बातें हैं, इल्म की बातें हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि जब हमारे तक ये बातें पहुँचे तो हम इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएं। अगर नहीं पहुँचाएंगे, सुनकर खामोश रहेंगे, अपने तक रखेंगे, तो हम ये बातें न पहुँचाने के ऊपर हम गुनहगार होंगे और अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। इसलिए हमारा क्या जाएगा कि हम दूसरों को जो है सिर्फ बटन दबाकर शेयर करना है। इसलिए इन बातों को जो है अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे दीन की बातों की तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।